So to start with, we have been doing this. Please go to the screen. We have been doing the chapter on what? This was the chapter on gifts. 5 minute breaks में आपको connect करता हूँ class से. We have been doing this chapter 7 related to the gifts, section 122, 129, and the questions comes from this itself. So don't forget this. Don't forget this. The chapter of gift is from section 122 to 129. यहीं से question prelims में आता है. And section 122 फिर हम लोगों ने पढ़ा था. This was section 122. What is this? Gift is defined under section 122, and this is the definition of the gift. Gift is the transfer. What? Gift. This is the section 122. Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration. So this was the definition of the gift. Gift की definition ये थी कि gift is the transfer of property which is made voluntarily, out of free will, out of free consent, and this is a gratuitous transfer, means without consideration. इसके बदले कुछ लिया नहीं जा रहा है. This is without consideration. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था. उसके बाद में we started with this on the basis of the section 122. We discussed the essential elements, and these were the essential elements. We have discussed lot of times about this. There are 5 essential elements. There must be transfer of ownership. The property must be existing property. Transfer is without consideration. It is voluntarily, and this gift must be accepted. So this was हम लोगों ने we have discussed all these one by one. We have discussed the one. We have discussed the existing property. We have discussed what do we mean by the transfer without consideration. हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं. voluntarily का भी समझ चुके हैं. और हम लोगों ने लास्ट की क्लास में ये किया था, गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये किया था. नेक्स्ट प्लीज कम टू दी सेक्शन 125. इट इज डीलिंग विद ए सिचुएशन. सी वी हैव रेड एज वन ऑफ द एसेंशियल. क्या हमने अभी पढ़ा कि गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड, है ना. ये गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफर, ये हमने पढ़ा अभी. अब इसी को ये कहां पर दी गई बात? 122 में दी गई है. अभी हम लोग 123 पर नहीं आए. हम लोगों ने 122 पढ़ा था और फिर हम लोगों ने 124 से कनेक्ट किया था उसको. नाउ आई एम कनेक्टिंग 122 टू 125 बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस है. इसी से कनेक्टेड मैटर है 125 में. सो प्लीज सी दिस इज ए डिफरेंट सिचुएशन. क्या सिचुएशन है? पढ़िए जरा इसमें आप. ये गिफ्ट टू several of whom one does not accept. It means there are more than one donee in this case. Section 125 is dealing with a situation when gift is being made in favor of more than one person. एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों के फेवर में दान दिया जा रहा है. पढ़िए लैंग्वेज क्या है. A gift of a thing to how many persons? To 2 or more donees. कितने लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग? 2 या 2 से अधिक लोगों को कर रहे हैं. 2 or more donees of whom one does not accept it is void as to the interest of whom one does not accept. समझिए बात को. देखिए इसमें क्या कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों ने. 125. दिस इज सेक्शन 125. बहुत प्यार से समझिए इसको. दिस इज सेक्शन 125. इट इज डीलिंग विद 2 और गिफ्ट इज मेड इन दिस केस टू 2 और मोर डोनीज. 2 या 2 से, यानी कि ऐसे मान लीजिए इसको इलस्ट्रेशन देता हूं आपको. ये देखिए इलस्ट्रेशन. A makes a gift to B, C and D. Here, how many donees are there? There are 3 donees. 3 डोनी हो गए यहां पर. ये B, C, D. A makes a gift to B, C, D. B, C and D. Without specifying their shares. जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसमें B का कितना हिस्सा होगा, C का कितना हिस्सा होगा,
डी का कितना हिस्सा होगा ये नहीं बताया है ना। समझ रहे आप, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी तीन डोनी हो गए, लेकिन इनका हिस्सा नहीं पता किनका, कि बी का उस प्रॉपर्टी में रेशियो 50% होगा या इक्वल होगा, कैसे होगा कुछ नहीं पता इन्होंने, विदाउट स्पेसिफाइंग देयर शेयर्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉपर तरीके से पूरी लाइन को पढ़ना। नाउ गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड सी, बी एंड सी आर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, बट डी इज नॉट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। अब समझिए, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द डी। अब सिचुएशन यहां पर ही आ गई। अब मैं आपको फिर डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ी है आप लोग इसमें देखिए, ए गिफ्ट ऑफ ए थिंग टू टू और मोर डोनीज मीन्स बी सी एंड डी। समझ में आई बात आपको? ऑफ whom one does not accept it, D does not accept it. तो this gift is void to the as to the interest of whom one does not accept means D does not accept. आपने कर लिया इसको अप्लाई इस पे, अब पढ़ लीजिए इसमें देखिए, A makes a gift to B, C and D. B, C and D तीन लोगों को गिफ्ट किया, B, C and D. B gift is accepted by B and C, but it is not accepted by D. Okay, or his guardian if he is incompetent. मतलब एक ने गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। Then, since the respective shares have not been specified, the shares of each are equal 1/3. यानी कि B को दिया था B, C, D 1/3, 1/3 and 1/3. But D has not accepted the gift. Therefore, gift on his part, यानी कि 1/3 is void. This 1/3 of the D share shall revert back to A. This share would not be added to the share of B and C. मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब मेरे ख्याल से बहुत टेक्निकल है नहीं, इसको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या खास बात क्या है, आपको ये देखना है इसमें, ये रहा, ठीक है। इस लाइन को मत भूलना आप लोग। ये देखिए, ये जो फ्रेज है मैं आपको अलग से, void as to the interest of whom does not accept. Whole of the gift is not void. Only that part of the gift will be void which is not accepted. अगर डी ने नहीं किया तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, अब यहां पर हुआ क्या है इसमें देखिए, इसको ऐसे पढ़िए आप ये कि गिफ्ट इज मेड टू दी सेवरल डोनीज ऑफ हुम एनी वन डोनी डज नॉट एक्सेप्ट। तो ये जो लाइन है, द गिफ्ट ऑफ ओनली ऑफ हिज पार्ट ओनली इज वॉइड। एंटायर गिफ्ट जो अदर गिफ्ट्स हैं उनके फेवर की जो गिफ्ट है वो वॉइड नहीं होगी। बहुत छोटी सी बात थी, मैंने आपको पूरी कोशिश की कि लैंग्वेज में समझा दूं उसको अच्छे तरीके से। अब किसी को फिर भी कोई डाउट हो समझ लीजिए, मैंने कोई गिफ्ट किया, मैंने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की आप सब लोगों को, आप में से 15 लोगों ने गिफ्ट नहीं मानी, एक्सेप्ट नहीं की, 15-20 लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, तो अब क्या होगा, जो लोग गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या उनकी भी गिफ्ट वॉइड हो जाएगी? नो, द गिफ्ट द गिफ्ट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ओनली फॉर दोज पर्सन हु आर नॉट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। और यहीं से प्लिम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एंटायर गिफ्ट वॉइड होगी या केवल उनके शेयर के उसमें होगी यहां पर। ये अब क्योंकि यहां पर शेयर को स्पेसिफाई नहीं किया गया था, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया है इसमें देखिए, ये जो इलस्ट्रेशन दिया है आपको, विदाउट स्पेसिफाइंग देयर शेयर्स। अब एक और देख लीजिए अगर आ गई ऐसे ही, हाँ, गिफ्ट्स मेड टू टू डोनीज ज्वाइंटली। अब यहां समझिए, विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, ये समझते हैं, इसको समझिए। राइट ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति जीवित मर जाएगा तो जो प्रॉपर्टी दूसरों चली जाएगी। देखिए, गिफ्ट मेड टू टू डोनीज, ऐसे मान लीजिए ए ने गिफ्ट की किसको, बी एंड सी को। कैसे की? विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, मतलब कि जो जीवित रहेगा, अगर बी मर जाएगा तो सी जीवित है तो सी पर, तो ये प्रॉपर्टी बी अगर डेथ हो जाती है तो उसका शेयर इसको चला जाए।
इन दैट केस दिस गिफ्ट इज वैलिड अपॉन द डेथ ऑफ वन ऑफ द सर्वाइविंग डोनी। यहां से इस पर ओनली इस लाइन पर मैंने आपको लाइन क्यों पढ़वाई है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन द गिफ्ट इज मेड जॉइंटली विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप दिस गिफ्ट इज वैलिड। समझे क्यों? मान लीजिए एक ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया गिफ्ट और एक ही कर पाया था, लेकिन सर्वाइवरशिप का राइट मिला था। उस केस में देख, जैसे ए ने गिफ्ट किया बी एंड सी को प्रॉपर्टी को, लेकिन कैसे किया? विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। बी एक्सेप्टेड, ये कंसेंट देने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले ये मर गया। अब यानी कि गिफ्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सी, गिफ्ट इज एक्सेप्टेड टेक्निकली ओनली बाय बी। तो व्हाट विल हैपन इन विद रिगार्ड टू द शेयर ऑफ द सी, सी का जो शेयर है उसके संबंध में क्या होगा उसमें? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिकॉज यहां पर एक स्पेशल कंडीशन है यहां पर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप के हिसाब से दिया है कि इन दोनों को मैं गिफ्ट कर रहा हूं, एक व्यक्ति मर जाएगा तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा हो जाएगा उसमें। ऐसे स्थिति में जो होल ऑफ द गिफ्ट वैलिड होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंटायर शेयर विल गो टू द बी इन दैट केस बिकॉज बी हैज एक्सेप्टेड। व्हाई? दिस इज द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। तो मैं चलिए समझाता हूं सारी बातों को दोबारा। स्क्रीन पे नहीं आया ना, मैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही बात। तो मैं इसको समअप इस तरीके से करता हूं, आप समझिए इस बात को। आई एम द डोनर, मैं गिफ्ट करना चाहता हूं। आई एम द डोनर एंड आई वॉन्ट टू गिफ्ट टू दी अमनप्रीत, शिवानी श्रीवास्तव, शिवानी शर्मा, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। आई वॉन्ट टू गिफ्ट माई प्रॉपर्टी टू 10 आउट ऑफ यू। आप 10 लोगों को मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई? So in this case, I am the donor, donor number 1, I am donor, one person, but there are several donees, means section. In that case, with regard to the acceptance of the gift, with regard to the acceptance of the gift, we will read section 122 and 125 together. This is section 125, 122 and 125. Why? आउट ऑफ 10 सपोज कीजिए 2 लोग उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर जाना पड़ेगा 122 और 125 में, बिकॉज ये अगर मान लीजिए सभी के सभी ने एक डोनर है एंड 10 डोनीज हैं, 10 के 10 डोनीज अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यू नीड नॉट टू कम टू दी 125 बिकॉज 122 में ही मामला निपट गया सर। यहां पर 125 बिकॉज डोनर ने गिफ्ट किया, डोनीज ने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन 125 में कब आएंगे? जब सेवरल डोनीज तो हैं, लेकिन उनमें से कोई एक या 2 ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको पहला पॉइंट यही क्लियर करना है कि व्हेन दी 125 विल कम इनटू प्ले। सेवरल डोनीज तो हैं, लेकिन विद दैट वन और अदर पर्संस आर नॉट, फ्यू आर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट एंड फ्यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट गिफ्ट। इन दैट केस you will apply section 125 along with the section 122। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? चलिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब नंबर 2, अब नेक्स्ट समस्या ये आएगी कि few are accepting and few are not accepting। तो whether those who are accepting should be punished for that, जो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको कोई पनिशमेंट मिलेगा, उनका कोई नुकसान होगा? क्योंकि जिन लोगों ने गिफ्ट छोड़ दी वो तो छोड़ दी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या वो अप्लाई होगा यहां पर या नहीं अप्लाई होगा? तो उसके बारे में 125 की स्पेसिफिक डायरेक्शन से क्या है ये समझ लीजिए, पढ़िए जरा एक बार दोबारा। क्या कहता है? गिफ्ट of a thing to 2 or more donees of whom one does not accept is void। वो गिफ्ट void तो होगी, that gift is void, लेकिन कैसे? as to the interest, उसी हित के तक होगी, of whom one does not accept। अब ये है देखिए, one does not accept, ये गिफ्ट तो void तो होगी, लेकिन दिस एंटायर गिफ्ट विल नॉट बी void। सो द पर्संस हु आर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट, they need not to worry, because
टू द एक्सटेंट दे हैव बीन गिफ्टेड दैट पार्ट विल बी गिवन टू देम। संपत्ति का उतना भाग उनको मिलेगा जितना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे विल नॉट बी पनिश्ड, दे विल नॉट बी इन जियोपर्डी जस्ट बिकॉज सम अदर पर्संस आर नॉट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। तो what will happen to the interest which is not accepted by the donee? उस हित का क्या होगा? मान लीजिए ये 105 करोड़ की संपत्ति थी, 3 लोगों को दिए गए, 35 करोड़ के 3 हिस्से थे। एक व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया, तो जो व्यक्ति का नहीं, उसका 35 करोड़ के संबंध में जो गिफ्ट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वॉइड, शून्य, मींस नॉट एनफोर्सेबल। तो ये जो 35 करोड़ रुपया है दैट विल गो बैक टू द डोनर, वो डोनर के पास में ही रहेगा। उसका जो इंटरेस्ट है दैट विल लाई ओनली विद द डोनर। मान लीजिए मैंने आपको 105 करोड़ गिफ्ट किए, अमनप्रीत को किए, 3 लोगों को किए, तो 3 में से 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो 70 करोड़ मेरे पास से गया। अब जिसने नहीं किया 35 करोड़ रुपया, वो पैसा मेरे पास आ गया। बात साफ हो गई यहां पर, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं? गिफ्ट, 105 करोड़ रुपया गिफ्ट कर रहा हूं। अब मैंने यहां पे ये नहीं कहा था कि कितना कितना कर रहा हूं, आप तीनों का शेयर कितना होगा। तो ऐसे केसेस में इक्वल शेयरिंग में उसको डिवाइड करेंगे, और फिर जिन लोगों का शेयर अलग अलग हो गया, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनको उनका शेयर मिल जाएगा, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया दैट शेयर विल रिमेन विद मी। अब मान लीजिए मैं इसमें कहता कि 105 करोड़ में 104 करोड़ मिलेगा अमनप्रीत को, है ना, 99,000 रुपीज मिलेंगे किसी एक को, और बाकी को केवल 1 रुपया मिलेगा। तो यहां पर मैंने स्पेसिफाइड कर दिए शेयर्स, जिसको जितने, किसी को 30 जितना, तो जिसको जितना शेयर गया अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको उतना ही शेयर मिल जाएगा। जिसने अपने शेयर को लेने से मना कर दिया वो शेयर वापस डोनर के पास में आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये मुझे बताइए। अब थर्ड पॉइंट जो टेक्निकल था, ये सर्वाइवरशिप का जो बात थी, एक नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट था यहां पर सर्वाइवरशिप का। इसमें क्या था? देखिए कि अगर डोनर ने यह कहा कि मैं 100 करोड़ रुपया आपको दोनों को दान कर रहा हूं, आई एम गिफ्टिंग दिस मनी टू और 3 वॉट एवर नंबर यू आर, आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब क्या हुआ कि इन केस आप में से कोई किसी की मृत्यु होती है ना, तो फिर ये प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं चाहिए, ये आप आपस में ही बांट लेना। 4 लोगों एक की डेथ होगी 3 में बट जाएगी, 2 लोगों एक की डेथ होगी 1 के पास रह जाएगी। इसे कहते हैं राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। जो व्यक्ति जीवित रहेगा उसका अधिकार हो जाएगा, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। जो व्यक्ति जीवित रहा उसको हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब गिफ्ट 2 लोगों को दी गई है, ए एंड बी, अब टेक्निकली क्या होना चाहिए? 120 की डिमांड क्या है? 120 की डिमांड क्या है कि द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ए एज वेल एज बी। ठीक है, नाउ द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय द ए, गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय द ए, बट बी कुड नॉट एक्सेप्टेड एंड ही डाइड। इससे पहले कि उसको करता वो मर गया। तो क्या बी का जो शेयर है वो वापस डोनर के पास जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गिफ्ट दी गई है वो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप के रूप में दी गई है उसको। इन दैट केस द गिफ्ट विल बी वैलिड एंड द एंटायर शेयर विल गो टू द ए इन दैट केस। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 125। मेरा ख्याल है कि अब सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया है समझ में तो मुझे बताइए। तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना ले हैं बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब, अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको 2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। विदिन 10 सेकेंड्स ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में। तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग, और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप ज़िंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे। आप ज़िंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था, विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।